Good morning, dear students of class 7th. This is Priyanka Arora, and students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So, students, I was explaining you chapter number 13, perimeter and area. So, in this particular video, I will be explaining you question number 1 to question number 10 of next exercise, that is exercise 13.2, which is related to area topic. So, let's begin with it. So students, exercise 13.2, which is related to topic area, and area is the measurement of the region enclosed by any figure. The unit of area is square unit. अगर आप किसी भी फिगर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, so area is the inside portion of that particular figure. In last video, I have taught you regarding the perimeter topic. And in perimeter topic, I told you that perimeter means the sum of the boundary. Okay, so perimeter is always related to the boundary and area is always related to the inside of the figure. Okay, this is the main difference between area and perimeter. So you please remember it. And the unit is also very much important, students. In perimeter, we only put the single unit. Like if meter is given in the question, we put meter. If centimeter, then centimeter. If kilometer, then we put kilometer. But in area, we always put the square unit. If it is meter, then answer comes as meter square. If it is centimeter, then answer comes as centimeter square. And if it is kilometer, then answer comes as kilometer square. Okay, so remember the unit and remember which portion we include in area. Now, here are some formulas related to area topic. So one by one I'm reading it. So please pay attention. These all formulas will come into use when you'll solve the questions of this particular exercise. So the first formula is area of square. So formula of finding the area of square is side into side, or you can say side square. This power 2 is called as square power. Then area of rectangle, formula is length into breadth. You all know that in rectangle there is length and breadth. So to find the area, the formula is length into breadth. Then area of parallelogram, the formula is base into height. When we multiply the value of base by the value of height, we get the area of parallelogram. Then area of triangle, formula is half into base into height. Okay, ट्राइंगल के अंदर भी बेस और हाइट होती है, और पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के फॉर्मूला के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम के अंदर हाफ नहीं लगता है और ट्राइंगल के अंदर क्या लगता है, हाफ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. देन एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर. एंड in my last video of 13.1, I have told you the value of pi. The value of pi is either 3.14 in decimal, or in fraction you can use 22 upon 7. And whenever in the question it is mentioned to use the specific value, then we use that particular value only. Then here are some of the formulas of conversion. So 1 square meter is equals to 10,000 square centimeter. You all know, students, that 1 meter is equals to 100 centimeter. You all know 1 meter is equal to 100 centimeter. So if we talk about 1 square meter, then the zeros will be doubled in this. अगर मीटर के अंदर 2 zeros लग रहे हैं, 100 के अंदर 2 zeros लग रहे हैं, तो स्क्वायर मीटर के अंदर क्या लगेंगे, zeros डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और जो यूनिट भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, स्क्वायर लग जाएगा दोनों जगह, तो जीरोस जो है वो डबल हो जाएंगे. आप स्क्वायर मीटर लिखिए या मीटर के ऊपर पावर 2 लगाइए, दोनों एक ही बात है. देन द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन इज 1 acre is equals to 100 square meter. Then 1 hectare is equals to 10,000 square meter. 1 square centimeter is equals to 100 square millimeter, and 1 square kilometer is equals to 10 lakh square meter. Okay, so this also you can do it easily. आपको 1 किलोमीटर और मीटर का फॉर्मूला पता है. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो जीरोस क्या होंगे, डबल हो जाएंगे. लाइक यहाँ पर अगर 3 है तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरोस डबल हो जाएंगे. सो 3 के डबल होते हैं 6. सो यू सी हियर 6 zeros are there. So like this, remember all the formulas of conversion and the formulas of finding the area of particular shape.
So with this, I'm moving on to the question number first of exercise 13.2. In this, we have to find the area of following triangles. Okay, some figures of triangle is given in this particular question number 1, and we have to find its area. Okay, and as we have discussed the formulas right now, so the formula of finding the area of triangle is half into base into height. Now, what is the base and what is the height? Here I'm showing you the figure of A part. This is the figure of A part. So here, students, you can see that two values are given in the figure. This is 7 centimeter which is given, and this is 2 centimeter which is given. Okay, so this one is the base of the triangle. ये triangle का base है, क्योंकि इसी के ऊपर जो triangle है वो stand कर रहा है, triangle create किया हुआ है. So this is the base, and this one is the, you can say either altitude or you can say it height. यहाँ पर आपको दिख रहा है altitude जो है वो 90 डिग्री का साइन यहाँ पर शो कर रहा है. So this is the height or you can say altitude. तो जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये जो वैल्यूज है हम हमारे फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे. तो देखिए, हाफ की जगह आप हाफ ही मेंशन करेंगे, बेस की प्लेस पर आप मेंशन कर देंगे 7 सेंटीमीटर एंड हाइट की प्लेस पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. देन कैंसिल दिस 2, one is in denominator, one is in numerator, so cancel it, and 7 is remaining in the numerator, so the answer will be 7 square centimeter. Okay, or you can write 7 centimeter square. Remember, we are finding the area, so unit will come in square. Either you write SQ centimeter or you can put the power 2. Fine. Now B part, base is 12 centimeter and height is 9 centimeter. This you can find by looking the figure. So this is the figure. Here you can see the base. So base is 12 centimeter and this is the height, or you can say the altitude. So it is 9 centimeter. So simply we will be putting these values in the formula. Half into base into height. Half will come as it is. Base is 12 centimeter and height is 9 centimeter. Now this 2 and 12 we can cancel. So 2 ones are 2 and 2 6 are 12. Simply multiply the numerator. Here it is 1, so we will not include it. We will only multiply 6 and 9. So 6 9s is equals to 54. And the unit will be in square power. So it will be square centimeter. Okay, so the main unit which is given here is centimeter. So you can either write SQ centimeter or you can write centimeter square. So that is part B. Now please pay attention on part C. First of all, I am showing you the figure of part C, and this is the figure of part C. Okay, now here the base is given. See, this is a right angle triangle. ये एक right angle triangle है. हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए होता है? हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है बेस और हमें चाहिए होती है हाइट. ओके, बट यहाँ पर हाइट जो है वो मिसिंग है. हाइट हमें कैलकुलेट करके नहीं दे रखी है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप हाइट कैलकुलेट करेंगे. हाइट को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेते हैं. ओके, सो देखिए, ये है आपका बेस. ओके, दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल. दिस वन इज द हाइपोटेन्यूस. फाइन. एंड दिस इज द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल. फाइन. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम वो होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे हमारा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स हाइट. सो सी, आई हैव रिटन हियर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हाइपोटेनियस क्या है? 13 सेंटीमीटर. सो दैट विल कम इन द ब्रैकेट. बेस क्या है यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर. दैट विल ऑल्सो कम इन ब्रैकेट. And perpendicular, we don't know, we are finding the perpendicular, so p square will come as it is. Now when you will do the square of 13 centimeter, जब आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे कैसे? आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. आप 13 को 2 से मत मल्टीप्लाई करिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक ओनली. पावर 2 को देखकर वो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नो, here 13 centimeter means 13 into 13. So after multiplying 13 and 13, you will get 169, and the power will come on unit, that is centimeter square. Here the square of 12, that means 12 into 12 will give you 144 centimeter square, and this p square will come
as it is. Next step, just transfer this 144 to other side, so it will come minus 144 centimeter. P square will remain here only. Now just subtract it. So 169 minus 144 will give you 25 centimeter square is equals to P square. Now in next step, we have to think of a two same number which after multiplying gives us the result as 25. ऐसे दो सेम नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई कर कर 25 आ जाए. So it is 5 and 5. So 5 into 5 instead of 25. In next step I have written 5 into 5. And remember students, it should be सेम नंबर ओनली. आप डिफरेंट नंबर नहीं लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पर सेम नंबर ही होना चाहिए. सेंटीमीटर स्क्वायर आप पावर लगा देंगे इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. अब क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको दो बार ना लिखकर हम इस तरीके से ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पावर 2 है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी. स्क्वायर पावर लेफ्ट हैंड साइड से भी कैंसिल हो जाएगी और राइट हैंड साइड से भी कैंसिल हो जाएगी. तो ऑन कैंसलिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू पी. तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, वो मिल गई हमको 5 सेंटीमीटर. तो अगर परपेंडिकुलर आ गया है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर तो परपेंडिकुलर ही क्या होगा इस फिगर के अंदर, परपेंडिकुलर की होगा फिगर की हाइट. अब हमारे पास में बेस भी है और हाइट भी है, तो बेस और हाइट जब हमें मिल चुकी है तो हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो हाफ एज इट इज विल कम, बेस जो कि था 12 सेंटीमीटर, यू कैन सी हियर इन द फिगर द बेस वाज 12 centimeter. So in place of base I have mentioned 12 centimeter and height we have calculated right now it is 5 centimeter. Now cancel this 2 and 12. So 2 ones are 2 and 2 6 are 12. Now simply multiply 6 and 5, you will get 30, and unit as I said that it is area, so unit will come as square, and the unit which was given in the question was centimeter, so square centimeter, or you can write centimeter square. Okay, now question number 2. In triangle ABC given alongside, so this is the figure of question number 2. So this is triangle ABC. Okay, this is the imaginary line. Imaginary line से इस triangle को increase किया गया है. तो question में जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है triangle ABC की. Okay, see the further question. AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 9 centimeter, and AE is equals to 4 centimeter. So what information is given? यहाँ पर given है AB is equals to 5 centimeter. ये जो AB है इसकी length given है यहाँ पर 5 centimeter. Then it is given BC is equals to 9 centimeter. BC की length given है 9 centimeter and AE यहाँ पर ये जो AE है इसकी length given है, ये given है 4 centimeter. So this is the information which is given in the question. Now what we have to find? We have to find the area of ABC. So ये है complete ABC. देखिए ये complete ABC. तो एक तो हमें इस पूरे triangle का area find out करना है, and then in second part we have to find the area of AEC. ये जो complete triangle है यहाँ से AEC इस complete का भी area हमें find out करना है. Okay, so see how we will be doing it. First of all, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर हमें ABC का एरिया निकालना है तो देखिए फिगर के अंदर ये है ABC. सो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABC हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट ट्राइंगल है हमारे पास में AEC, इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे AEB को, सी वी आर हैविंग द मेन ट्राइंगल हियर, टोटल जो कंप्लीट ट्राइंगल है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पर AEC. ओके, दिस इज द कंप्लीट ट्राइंगल. इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ये वाला जो ट्राइंगल है कॉर्नर में जो यहाँ पे ट्राइंगल है इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं AEB को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में जो एरिया निकल जाएगा वो किसका निकलेगा, जो रिमेनिंग एरिया होगा वो होगा ABC का. सो दैट इज ओनली वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप फाइंड आउट करेंगे AEC का एरिया, देन आप कैलकुलेट करेंगे AEB का एरिया और फिर दोनों को आपस में आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ABC. अब देखिए अगर आप AEC का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए,
बेस और हाइट, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया इज बेस एंड हाइट। तो यहाँ पर AEC में कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर बेस क्या होगा, यहाँ तक तो गिवन है 9 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन सी दैट टिल हियर BC इट इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर, बट बेस क्या होगा, बेस तो कंप्लीट होगा, EC होगा कंप्लीट बेस। हमारे पास में जो बेस गिवन है वो ओनली गिवन है BC का, सिर्फ इतना गिवन है बेस। लेकिन हमें ये भी चाहिए, अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया निकालने के लिए हमें हाइट तो गिवन है 4 सेंटीमीटर, सी हियर हाइट इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, बट base is only half base is given, means 3/4 base is given, 1/4 base is missing। तो बिना बेस के हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बेस मिसिंग है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम की थ्रू इस बेस को कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे ट्राइंगल AEB में। ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, क्या होता है, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p², इस ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पर जो h है, हाइपोटेनियस है, वो क्या है स्टूडेंट्स, जो स्लैंटिंग लाइन होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो यस, यहाँ पर जो ये 5 सेंटीमीटर है वो है आपका हाइपोटेनियस। ओके, और बेस यहाँ पर मिसिंग है, और परपेंडिकुलर जो गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है यहाँ पर 4 centimeter. So this is the hypotenuse 5 centimeter. This is the perpendicular 4 centimeter, and this we will be calculating, which is the base. Okay, B² we will be calculating. So see in the figure AEB, हमने ये जो फिगर लिया है AEB, इसके अंदर EB जो है वो बेस है, और AB जो है वो हाइपोटेनियस है, और AE जो है वो परपेंडिकुलर है। So see, EB is base, perpendicular is 4 centimeter, which I said is AE, and hypotenuse is AB, which is 5 centimeter. So Pythagoras theorem में हमने hypotenuse के नीचे पुट करा 5 centimeter, base जो कि है EB, उसकी जगह हमने EB को ही मेंशन किया, और perpendicular की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 4 centimeter। अब आप 5 का स्क्वायर करिए, आ जाएगा 25 centimeter square, EB square as it is you will mention, and the square of 4 centimeter is 16 centimeter square। नेक्स्ट स्टेप में 16 सेंटीमीटर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू EB स्क्वायर। अब 25 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको दो सिमिलर नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 9 आता है। एंड प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप हमेशा सेम नंबर ही लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके अबव गिवन वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। So instead of writing this 3 and 3 two times, what I have done, I have written this 3 centimeter in bracket, and then outside the bracket I have put power 2 because it is repeating 2 times. Now next step, this power 2 is coming in left hand side and right hand side both, so we will cancel this power 2. What will remain? 3 centimeter is equals to EB. That means जो EB है उसकी लेंथ आ गई हमारे पास में यहाँ पर 3 centimeter. Okay, so this EB which was missing earlier, we have calculated it and it is now 3 centimeter. अब हमने इसको 3 centimeter calculate कर लिया, तो अब हमारे पास में complete length आ जाएगी इस EC की। 9 centimeter तो पहले ही था BC का, EC की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो EC की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सो EB की लेंथ में आप ऐड कर देंगे BC की लेंथ को। सो EB plus BC, EB was given as 3 centimeter which we have calculated right now, and BC was already given as 9 centimeter. So 3 centimeter plus 9 centimeter is equals to 12 centimeter. तो अब आप देखिए आपके पास में जो complete base है, complete base की लेंथ आ गई 12 centimeter। अब complete base आ गया है तो ये जो full triangle है हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम AEC का एरिया हमें फाइंड आउट करना था सबसे पहले, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट बेस गिवन था, तो पहले हमने इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमें बेस मिल गया है तो कंप्लीट बेस को हमने फाइंड आउट कर लिया 12 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द बेस एंड हाइट विल रिमेन सेम, दिस 4 सेंटीमीटर। So using this base and height, we will find the area of triangle AEC. How? Pay attention here. See,
इन ट्राइंगल AEC, एज आई हैव टोल्ड यू, बेस को हमने ऐड कर लिया 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट जो कि है AE 4 सेंटीमीटर। अब हमने फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ एज इट इज आ जाएगा, बेस की जगह आप लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और हाइट की जगह आप मेंशन कर देंगे 4 सेंटीमीटर। 2 एंड 12 को कैंसिल करिए स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड देन मल्टीप्लाई 6 and 4, so you will get 24, and since it is area, so unit will come square centimeter. So this is the area of AEC. So complete AEC का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ AEB, ये जो एरिया है AEB, क्योंकि जब आप AEC में से AEB को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपके पास में आएगा एरिया ऑफ ABC। सो AEB का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, बेस और हाइट। तो बेस गिवन है यहाँ पर EB का 3 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो इसको आप फॉर्मूला में पुट करके इजीली AEB का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सी एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसा कि मैंने बताया हाफ एज इट इज आएगा, और बेस जो हाफ ट्राइंगल है यहाँ पर, हाफ का जो बेस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो बेस की प्लेस पर आप पुट कर देंगे 3 सेंटीमीटर और हाइट की प्लेस पर आप पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। देन सिंपली सॉल्व इट, सो कैंसिल 2 and 4, it will come 2 and multiply 3 and 2, so answer will be 6 square centimeter। अब हमारे पास में AEB का भी एरिया फाइंड आउट हो गया है और AEC का भी एरिया फाइंड आउट हो चुका है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, ABC का एरिया निकालने के लिए AEC में से AEB को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो AEC आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और AEB कैलकुलेट हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो विच इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरीके से आप ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो प्लीज बी careful while solving this question. This is quite tricky, but if you are paying attention properly, then you can easily solve it. तो complete जो triangle है उसके अंदर से जब आप ये साइड वाले triangle को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ABC का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, और इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है टू फाइंड द एरिया ऑफ AEC। AEC का एरिया फाइंड आउट करना है, तो AEC हम फर्स्ट पार्ट में ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो सेकेंड पार्ट के अंदर यू कैन सिंपली राइट एज कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, जैसा कि हमने पार्ट ए में किया था। तो वापस आप सॉल्व कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना आया था जब हमने कंप्लीट लाइन को ऐड किया था, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 9, तो बेस हो गया था हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइट थी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। तो सिंपली हमने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट किया तो हमारी वैल्यू जो है वो आ गई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल whose height is 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का बेस फाइंड आउट करना है हमको, हाइट गिवन है क्वेश्चन में और एरिया भी कैलकुलेट करके दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, इंफॉर्मेशन जो गिवन है क्वेश्चन में हम वो मेंशन करेंगे। सो हाइट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर, बेस वी हैव टू कैलकुलेट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन एज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सिंपली पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया के जस्ट नीचे आप एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज गिवन एज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ विल कम एज इट इज, base will come as it is because base is missing in this question and height is given as 14 centimeter, so we'll place the value 14 centimeter under height। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 2 है डिवीजन में, इसको आप अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 14 जो मल्टीप्लिकेशन में, इसको जब आप अदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा डिवीजन के अंदर। सो अरेंज इट लाइक दिस, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसको मैंने सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 है तो सेंटीमीटर को मैंने 2 टाइम्स ओपन करके लिख दिया है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है वो दूसरे सेंटीमीटर से न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। 2 और 14 को आप कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 7 14 एंड 7 एंड 98 को जब आप कैंसिल करेंगे सो 7 1 7 एंड 7 4 28। तो यहाँ पर जो हमारी बेस की वैल्यू है वो आ गई 14 centimeter. So this is quite simple question. Like this you can find the base of the triangle. Now question number 4th is we have to find the area of circles. Okay, some radius is given in this question and we have to find the area of circle. Okay, in one part radius is given, in another part diameter is given, and in one part circumference is given. So according to that we have to find the area. So let's begin with A part.
radius here is given as 21 centimeter, and in the question, students, please pay attention that the value of pi which we have to take is given as 22 upon 7. So we have to use in place of pi 22 upon 7 here. Formula of finding the area is pi r square. So in place of pi you will put 22 upon 7 r square का मतलब होता है कि हमें r को 2 times लिखना है, r into r. So here the value of r is given as 21 centimeter. So we will repeat this 21 centimeter 2 times. So 21 centimeter into 21 centimeter, or instead of writing centimeter 2 times, you can directly write centimeter square. Now cancel this 7 and 21. So 7 1s are 7, 7 3s are 21. Now multiply all the values which are there in the numerator to get your answer. So 22 into 3 is equals to 66. Multiply by 21. So after multiplication, you will get the result as 1386 centimeter square. Remember, area is there, so power 2 will come in the answer. Okay, so that is part A. Now let's move on to part B. In part B, radius is not given, diameter is given. So we cannot solve the question using the diameter. Why? Because in our formula there is pi r square. R is there, d is not there. So first of all, with the help of this diameter, you will be finding the radius, and to find the radius, the formula is d upon 2. You all know, students, that radius is half of diameter. Radius जो है diameter का half होता है. So अगर diameter 35 है तो आप क्या करेंगे, 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करिए, आप इसी तरीके से इसको फॉर्मूला में प्लेस कर दीजिए. तो रेडियस हो गया हमारा 35 upon 2. Now we are putting it in the formula. Area of circle is pi r square. So value of pi will come 22 upon 7 as it is given in the question. And in place of this r square, we will be repeating the value 35 upon 2 two times. So 35 upon 2 into 35 upon 2. Now, whatever values are cancelling, just cancel it. So this 7 and 35 is cancelling. 7 1s are 7, 7 5s are 35. 2 and 22 is cancelling. 2 1s are 2, 2 11s are 22. Now multiply the values which are there in the numerator. So 11 into 5 is equals to 55, and 55 into 35 will give you 1925. So this value will come in numerator, and in denominator what is remaining? Denominator only number 2 is remaining, so that we will write in denominator. Now simply divide it. 1925 को आप 2 से divide करिए, so आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा 962.5, and unit will come as centimeter square because we have calculated the area. Okay, so that was part B. Now pay attention on part C. Part C के अंदर students circumference given है, और circumference के बाद में हमें बोल दिया है with this circumference you find out the area of circle. अब circumference की हेल्प से आप कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे? हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है वो होता है रेडियस. तो पहले हम इस circumference की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल. Circumference क्या होता है? Circumference is like a perimeter of the figure. So this is the perimeter of circle. Circumference of circle का formula क्या होता है? मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. It is 2 pi r. तो सबसे पहले हम circumference of circle का फॉर्मूला लगा देंगे, that is equal to 2 pi r. अब circumference of circle की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 484 सेंटीमीटर, वो हम प्लेस कर देंगे. 2 will come as it is. pi की जगह जैसा कि हमें पता है 22 upon 7 हमें प्लेस करना है. r will come as it is. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो 7 डिनोमिनेटर है इसको आप ट्रांसफर कर देंगे न्यूमरेटर के अंदर, और 2 और 22 जो न्यूमरेटर में गिवन है मल्टीप्लिकेशन में, दैट विल कम इन डिनोमिनेटर. सो देखिए इस तरीके से हमारी इक्वेशन फ्रेम होगी. 484 सेंटीमीटर इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r. नाउ कैंसिल करिए आप यहाँ पर. सो 2 के टेबल से हमने पहले कैंसिल किया. यहाँ पे 2 1s are 2, here 2 2s are 4, 2 4s are 8, एंड अगेन 2 2s are 4. 242 आ गया. 22 और 242 कैंसिल हो रहे हैं 22 की टेबल से. कैसे? देखिए यहाँ पे 22 1s हो जाएगा 22, देन 24 से स्मॉलर नंबर 22 की टेबल में आता है 22 वन टाइम. सो 22 1s are 22, 2 कैरी हो जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 22, अगेन 22 1s are 22. अब आप 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो रेडियस है वो आ जाएगा 77 सेंटीमीटर. सो देखिए स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ रेडियस. तो रेडियस हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए कंपल्सरीली चाहिए, इसीलिए हमने क्या करा, पहले हमने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट किया. अब सिंपली हमारे पास में रेडियस फाइंड आउट हो चुका है तो हम एरिया ऑफ सर्कल इजीली कैलकुलेट
कर सकते हैं by putting the formula pi r square. In place of pi, mention the value 22/7 and r square. That means the value of radius will be repeating 2 times. So in place of r, we will be writing 77 into 77. Cancel this 7 and 77. So 7 ones are 7 and 7 11s are 77. Now multiply all these values which are there in the numerator. So 22, 11 and 77. We will multiply these three values. So we'll get the answer as 18634. And since it is area, so the answer will come as centimeter square. Okay. Now, question number 5 is find the circumference of a circle whose area is 7546 square centimeter. यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया गिवन है सर्कल का और पाई की वैल्यू भी गिवन है कि पाई की प्लेस पर हमें यूज में लेना है 22/7 को। और पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, कौन सी वैल्यू कंपल्सरीली चाहिए होती है, रेडियस, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। और आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी रेडियस की वैल्यू नहीं गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ रेडियस। सो सी, area of circle is given and circumference of circle we have to calculate. So first of all put the formula of area of circle which is equals to pi r square. Area of circle के just नीचे हम area of circle की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की प्लेस पर जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था 22/7 हमें यूज में लेना है, तो पाई की प्लेस पर आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय r square. Now in next step this 7 will come in numerator because it is in division, so in next step it will go in multiplication and this 22 will come in denominator. So arrange it like this and then do the cancelling. So by the table of 22 these values are cancelling. So 22 ones are 22 and 22 343 times is equals to 7546. This if you cannot do the direct cancelling then you do the division to find the value. So 343 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 7 ऑलरेडी देयर है। 343 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2401 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर यूनिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्क्वायर्स को कैंसिल करना पड़ेगा फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर को हम कैसे कैंसिल करेंगे, जब हमें 2401 की जगह दो सिमिलर नंबर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे कौन से दो सिमिलर नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2401 कैलकुलेट होता है, तो वो दो सिमिलर नंबर होते हैं 49 एंड 49। सो 49 और 49 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2401 आएगा। Instead of writing this 49 two times, what I have done, I have written 49 in bracket and then I have mentioned the power 2. Now both the sides you can see power 2. So simply we will cancel this power 2 from left hand side and right hand side. So what is remaining, 49 centimeter is equals to r. अब हमारे पास में आ गई है r की वैल्यू। ये सारा प्रोसेस हमने इसीलिए किया था क्योंकि हमें रेडियस को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस पूछा है तो सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट थी। अब हम इजीली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग इट इन द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला है 2πr, 2 एज इट इज आ जाएगा, पाई की प्लेस पर हमें 22/7 को यूज में लेना है और r जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट करा है 49 सेंटीमीटर, दैट विल कम हियर। नाउ कैंसिल दिस 7 and 49. So 7 ones are 7 and 7 sevens are 49. Now simply multiply 2, 22 and 7. So 22 2s is 44 and 44 into 7 will give you 308. Now students please be careful, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है सर्कमफेरेंस, हमने एरिया नहीं फाइंड आउट करा है, एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो सर्कमफेरेंस इज जस्ट लाइक पेरीमीटर। सो जो आंसर में यूनिट आएगी वो सिंगल यूनिट आएगी, उसमें आप पावर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट नहीं आएगी, सिंगल यूनिट ही आप मेंशन करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर। सो 308 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of the maximum circle that can be fit in a square of side 7 centimeter. Take pi is equals to 22/7. So see, यहाँ पे हमें उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जो कि एक स्क्वायर के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाए और वो जो स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर यूज में लेनी है 22/7. So see, this I am explaining you with a figure. So देखिए ये है एक स्क्वायर, ओके, स्क्वायर की जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर और कहा गया है कि
ऐसा सर्कल होना चाहिए जो कि 7 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर के अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर सर्कल के बाहर स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सर्कल के सेंटर के अंदर भी अगर लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो लाइन भी कितने सेंटीमीटर की होगी, वो जो लाइन सेगमेंट है वो भी होगी 7 सेंटीमीटर की। तो सर्कल के सेंटर को क्रॉस करके जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और सर्कल के सर्कमफेरेंस में अगर वो दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती है तो वो जो लाइन है वो कहलाती है डायामीटर। सो बेसिकली ये जो फिगर है इसका डायामीटर भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो फिट है वो किसके अंदर फिट है, एक स्क्वायर के अंदर फिट है। तो स्क्वायर की अगर आउटर बाउंड्री जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो सर्कल के अंदर भी अगर हम मेजर करेंगे यहां से यहां तक तो वो भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ओके, सो सी साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, तो जो स्क्वायर की साइड होगी वही क्या होगा सर्कल का डायामीटर होगा। और डायामीटर ऑफ सर्कल जैसा कि स्क्वायर की साइड 7 सेंटीमीटर है तो डायामीटर ऑफ सर्कल भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम एरिया जो है वो डायामीटर से फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम एरिया रेडियस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम डायामीटर से फाइंड आउट करेंगे रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, तो आप लिख देंगे 7/2। आप या तो 7/2 से ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए 3.5 सेंटीमीटर। So see, now we will put this radius in the formula. So the formula of area of circle is pi r square. Pi की जगह हमें 22/7 को यूज में लेना है। r square that means जो r की वैल्यू है वो 2 टाइम्स आएगी, तो यहाँ पर हम 3.5 into 3.5 2 टाइम्स मेंशन कर देंगे। अब 7 और 35 को आप कैंसिल करिए, सो 7 1 7 7 5 35। यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के पहले है तो हम भी यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए 22, 0.5 और 3.5 को। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करिए, डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और सिंपल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करिए। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आए उसको 35 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है और यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो हमारे आंसर के अंदर जो डेसिमल आएगा वो टोटल 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपको वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 3850। कंप्लीट मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 3850। अब जैसा कि मैंने बताया 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, तो से आप काउंट करिए 2 डिजिट। सो 0 और 5 हो जाएगी 2 डिजिट, उसके पहले लग जाएगा हमारा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 38.50। अब डेसिमल के बाद में अगर लास्ट में 0 आता है तो 0 को हम रिमूव कर देते हैं, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 38.5। अब क्योंकि ये एरिया है और स्क्वायर यूनिट आती है, यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ईदर स्क्वायर सेंटीमीटर और यू कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग डायमेंशन। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और डायमेंशंस मतलब रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस होती है वो लेंथ और ब्रेथ होती है। सो लेंथ और ब्रेथ की यूनिट्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, लेंथ इनटू ब्रेथ, वैल्यूज पुट करिए। लेंथ की प्लेस पर आ जाएगा 10 मीटर और ब्रेथ की प्लेस पर आ जाएगा 12 मीटर। सिंपली मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 और यूनिट आ जाएगी स्क्वायर मीटर और यू कैन राइट मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से बी पार्ट के अंदर लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 150 मिलीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज बी केयरफुल, हम डिफरेंट यूनिट्स के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लेंथ के साथ में सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ के साथ में मिलीमीटर गिवन है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन यूनिट्स को सिमिलर करना पड़ेगा। यूनिट्स को सिमिलर करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आप दोनों यूनिट्स को क्या करिए, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दैट मीन्स हम करेंगे डिवाइड। अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो ब्रेथ की वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे फॉर्मूला वाली वैल्यू से। तो 150 को आप करेंगे 10 से डिवाइड, फॉर्मूला वाली वैल्यू है 10। सो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल, तो ये जो 150 था अब वो कन्वर्ट होके हो गया है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों यूनिट सिमिलर हो गई है, लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है। तो आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करिए, 30 into 15 will give you 450 and unit will come as square centimeter because we have calculated the area. Fine. Now in C part it is 55 meter and breadth is given as 1000 centimeter. Again you can see students that the unit is different. यहाँ पर
मीटर गिवन है लेंथ में और ब्रेथ के अंदर सेंटीमीटर गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक द सिमिलर यूनिट. सो फॉर्मूला लगेगा मीटर और सेंटीमीटर का. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर है उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो अगेन विल गो टू ऑपोजिट डायरेक्शन. सो फॉर दिस वी विल डू डिवीजन. सो 1000 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से. जब आप 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपकी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर से चेंज होके हो जाएगी मीटर. देन these two zeros will be cancelled. 2 zeros of denominator will cancel from the 2 zeros of numerator. So what is remaining in the numerator? It is 10 meter which is remaining in the numerator. Now breadth is 10 meter and the length is 55 meter. So area of rectangle we can calculate easily because both the units now are in meter. So length into breadth 55 meter into 10 meter. So when you will multiply this number by 10, you will get 1 0 at last. So it will be 550. And since it is area, so it will come as square meter or you can write meter square. Fine. Now question number 8 is the area and length of a rectangle are 255 meter square and 17 meter square. यहाँ पर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है. हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. So see, first of all we'll write the information which is given in the question as area of rectangle is 255 meter square, length of the rectangle is 17 meter. So we have to find the breadth of the rectangle. Simply we will mention firstly the formula of area of rectangle which is equals to length into breadth. Now the value of area of rectangle is 255 meter square. The value of length is 17 meter which we will mention under length, and breadth we don't know, so breadth will remain as it is. Now in next step this 17 meter which is in multiplication will go other side, so it will come in division. So 255 meter square upon 17 meter. Cancel these values. 17 ones are 17 and 17 15 times is 255. So like this we will get the value of breadth. So the breadth here is 15 meter. यहाँ पर मीटर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर. सो डिनोमिनेटर का 1 मीटर न्यूमरेटर के 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा. सो ब्रेथ के अंदर सिंगल यूनिट ही आएगी मीटर. सो दस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 मीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर इफ इट्स साइड हैज फॉलोइंग डायमेंशन. हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और जो साइड्स की डायमेंशन है, साइड्स की लेंथ है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बट it is given in the question that we have to find the area in meter square. इस यूनिट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है वो है 90 सेंटीमीटर. तो पहले हम क्या करेंगे, बिगनिंग में ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, सो विल गो टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो फॉर दिस वी विल बी डूइंग डिवीजन. तो आप क्वेश्चन वाला जो नंबर है 90, इसको आप फॉर्मूला वाले नंबर से कर देंगे डिवाइड. तो 90 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट के पहले हो जाएगी. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेसिमल 90 के पहले, तो इट विल बी 0.90. अब लास्ट में क्योंकि 0 आ रहा है तो हम उस 0 को रिमूव कर सकते हैं. तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.9 मीटर. अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. सो इट विल बी 0.9 मीटर इंटू 0.9 मीटर. सिंपली आप डेसिमल को रिमूव करके नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए. सो 9 9 हो जाएगा 81. एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट लगेगी मीटर स्क्वायर. अब डेसिमल की प्लेसमेंट यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले है, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले है. सो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. So 0.81 meter square will be the answer of part A. Now see in part B, it is given as 1 meter 50 centimeter. तो डबल यूनिट में गिवन है तो पहले हम इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो मीटर और सेंटीमीटर को पहले आप सेपरेट करेंगे इसके बीच में प्लस का साइन लगाकर. सो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन मीटर, सो विल नॉट कन्वर्ट इट. We'll convert this 50 centimeter into meter. So put the formula 1 meter is equals to 100 centimeter. Again centimeter को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे. 50 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट्स के पहले आपका डेसिमल आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.50. बट लास्ट में 0 है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो. तो आप लिख सकते हो 0.5. अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में. अब 1 और 0.5 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर. ये आ गई हमारी साइड ऑफ स्क्वायर. Now put it in the formula of area of square which is side into side. So 1.5 meter into 1.5 meter. After multiplying you'll get the answer as 2.25 meter square.
डेसिमल को रिमूव करके ही स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करिएगा, 15 हो जाएगा 225। अब यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, सो 1 + 1 = 2। सो आंसर में टोटल 2 डिजिट्स के पहले हमारी डेसिमल की प्लेसमेंट होगी। और यूनिट का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एरिया है इसीलिए यहाँ पर आएगी यूनिट मीटर स्क्वायर। अगर आप एग्जाम में यूनिट गलत मेंशन करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10. This is the last question which I am explaining in this video. After that, the remaining question you'll get in the next video. So question number 10 is a tabletop is 2.5 meter long and 1.6 meter wide. एक टेबल का टॉप है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। सो डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो रेक्टेंगल के अंदर गिवन होती है। सो जो टेबल टॉप है उसकी शेप होगी रेक्टेंगुलर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि अगर उस टेबल टॉप के ऊपर हम पॉलिश करते हैं, फर्नीचर के ऊपर पॉलिशिंग होती है, तो अगर पॉलिश करते हैं उस टेबल टॉप पर तो उसकी रेट पर मीटर स्क्वायर की गिवन है ₹5। तो पूरे टेबल टॉप के ऊपर पॉलिश करने की कितना अमाउंट स्पेंड होगा, मीटर स्क्वायर गिवन है ना, तो मीटर स्क्वायर से आपको पता कर लेना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। पावर 2 आ रही है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एरिया इन दिस क्वेश्चन। सो सी, length of tabletop is given 2.5 meter, breadth of tabletop is given 1.6 meter. So area of tabletop will be calculated as length into breadth. So 2.5 into 1.6. तो 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई करिए। 25 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब डेसिमल की प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले, यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले है, तो टोटल 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में 0 है, तो डेसिमल भी रिमूव हो जाएगा और 0 भी रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू क्या रह जाएगी, ओनली 4 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसीलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर आया है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी लग रही है, ₹5। ओके, तो अगर 1 मीटर की ₹5 लग रही है तो 4 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट लगेगी। ओके, पर मीटर की गिवन थी क्वेश्चन में ₹5, तो 4 मीटर की कितनी हो जाएगी। तो सिंपली आप क्या करिए, एक की गिवन है, ज्यादा की निकालनी है, तो हम 4 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 5s is equal to ₹20. Thus the cost of polishing a tabletop is ₹20. Okay, Students, so today I have given you the explanation of question number 1 to question number 10 of exercise 13.2 chapter number 13 perimeter and area. All the questions were related to topic area and I hope that the explanation must be clear to you students. Now try solving these questions by yourself to understand all these questions in a better way. Now I'll see you back in my next video where I will be giving you the explanation of 10 more questions of this similar exercise 13.2. Till then, you please complete all your pending work and do take good care of yourself students. Okay? Thank you so much from my side.